Hi everyone, welcome to my channel PSM TV. Today we are going to discuss a very important topic, that is principles of epidemiology. Before that, I would appreciate if you people like and share my videos to all your friends, and also subscribe my channel and hit the notification bell so that you get notified as I upload new videos every Tuesday and Thursday. So now let's discuss the topic. So friends, what is epidemiology? First of all, we will start with the definition of epidemiology, and this definition we should know it by heart. This is often asked in our vivas and in theory exams too. So it is basically, I have highlighted the important terms, that is occurrence, distribution, determinants and application. These four terms should be there in your definition. So epidemiology is defined as the study of the occurrence and distribution of health related events, states and processes in specified population, including the study of the determinants influencing such processes and the application of this knowledge to control relevant health problems. Now there are three main aims behind this. And these three main aims are, first of all, by this study, we will get to know about the distribution of a disease, like how a disease is distributed in a population and how big a problem is, or how big this disease problem is, that is magnitude of health as well as disease problem in human population. The point to notice here is that we are not just talking about disease, we are also taking into consideration health. Okay, then second aim is that we will come to know about the etiological factors or the risk factors which are involved in the pathogenesis of this disease. And lastly, it will also provide us data which is essential for us for the purpose of planning, implementation and evaluation of the services which are being provided for that disease, so that it can be prevented, it can be controlled and specific treatment of that disease can be given. And we can also set the priorities, that okay, this step should be taken as a priority first and this step should be taken second among those services. So these are the three main aims behind epidemiology, and ultimately all these three will lead to two things: either elimination or reduction of the health problem or its consequences, and promotion of health and well-being of society as a whole. Okay, so this will ultimately lead to these two things. Now this epidemiology has three components. First is frequency, second is distribution and third is determinants. Okay, and these are with respect to the disease. So frequency of a disease, it is measured by two things: ratio or rate. This we will discuss in the further discussion. Okay, then second is distribution of disease. This is seen with respect to time, place and person, and what we are going to get from this is the pattern in which a disease is distributed, like if there is some seasonal variation or not, if there is some geographical variation or not, if there is a particular race, ethnicity or gender affected by this disease or not. All of this will also arouse our like suspicion for the various risk factors, which will lead to the hypothesis generation. And when this hypothesis will be tested by the process which is described for this, then we will come to know what all risk factors are involved in this occurrence of disease. Okay, then lastly, determinants is the analytical part, what is helping us to determine this disease. So this will help us in programming, like in establishing health programs and various policies, and also in doing various interventions accordingly. Okay, now there is one important difference we should remember, that what is the difference between epidemiology and what is it and clinical medicine. That is, what is the difference between the work an epidemiologist do and the work which is done by a physician. Okay, so this is what is for epidemiology. Here the unit of study is not one person, it is whole population, or it is population at risk, and
here the disease patterns are noticed in a particular population. We focus both on sick as well as healthy individuals, and the focus therefore is mainly on the identification of source of infection, mode of infection कि वो infection हुआ कैसे है, और the risk factor जो कि involved था इस infection के या disease के होने के लिए, and finally जो भी हमने उसको intervention दिया उस प्रिवेंटिव या थेरेपेटिक मेजर का आउटकम क्या हुआ उसको इवेलुएट करना. दिस इज द टास्क ऑफ एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, एंड फॉर दिस थिंग इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू गो आउट इन द कम्युनिटी, बिकॉज पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन के अंदर जाना ज़रूरी है, तभी यू विल बी एबल टू ब्रिंग आउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पॉपुलेशन. ओके, एंड जब हम इसको ओवरऑल देखें तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कंसेप्चुअल थिंग. ओके, एंड देयरफॉर जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको हमें इंटरप्रेट करने के लिए टेबल्स और ग्राफ्स की हेल्प लेनी होगी, एंड देन इट विल बी इंटरप्रेटेड, और जो भी उसके रिजल्ट्स निकल के आते हैं देन द क्लिनिशियन यूजेस दोज रिजल्ट्स फॉर मेकिंग डायग्नोसिस एंड डूइंग द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली. सो फॉर क्लिनिकल मेडिसिन दैट इज़ द डॉक्टर बेसिकली वो एक पेशेंट को देखेगा या फिर अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को देखेगा. सो द यूनिट हेयर विल बी केस और केसेस, एंड यहाँ पे डॉक्टर का होल सोल कंसर्न इज़ द डिजीज़. यानी कि अगर पेशेंट कुछ सिम्टम्स लेके उसके पास आया है तो उसका टारगेट है उस सिम्टम से उसको मोस्ट लाइकली क्या डिजीज़ होने के चांसेस हैं वो डायग्नोस करना. सो that doctor is focused on diseased individual only, not the healthy individuals. Okay, and यहाँ पे उसका काम क्या है, जैसे वहाँ पे एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम था कि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आइडेंटिफाई करता था और मोड ऑफ स्प्रेड आइडेंटिफाई करता था, रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करता था कम्युनिटी में जाके. यहाँ पे डॉक्टर का काम है डिजीज़ को डायग्नोस करना, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देना. ओके, सो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक पेशेंट खुद चल के डॉक्टर के पास ना जाए. एंड यहाँ पे जो कंसेप्ट है दैट इज़ टेक्निकल कंसेप्ट, यानी कि यहाँ पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस इन्वॉल्व हैं जो कि टेक्निक बेस्ड चीज़ें हैं. Okay, so this is the difference between the epidemiologist and the physician, or epidemiology and clinical medicine. इससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट तो नहीं है, लेकिन हाँ these are closely related. ओके, को एग्जिस्टेंट हैं, यानी कि एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, म्यूचुअली हेल्पफुल हैं. कैसे, यानी कि जब तक आपको एक एपिडेमियोलॉजिस्ट प्रेवलेंस की, किसी भी डिजीज़ के प्रेवलेंस की, उसकी एटियोलॉजी यानी कि उसके रिस्क फैक्टर्स की, उसका प्रोग्नोसिस यानी कि आउटकम उसका कैसा होने वाला है, इस सब चीज़ की अपनी रिसर्च स्टडीज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, तब तक क्लिनिशियन जो है उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके डायग्नोसिस को इम्प्रूव या मतलब किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस नहीं कर सकता. अगर डायग्नोसिस कर लिया है तो उसको इम्प्रूव नहीं कर सकता, बिकॉज उसे रिस्क फैक्टर्स ही नहीं पता होंगे, तो वो क्या मॉडिफाई करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, और वो प्रॉपरली पेशेंट को मैनेज नहीं कर पाएगा. सो दिस इज़ द डिफरेंस, एंड सेम इज़ वाइस वर्सा ऑल्सो. यानी कि अगर पेशेंट खुद चल के डॉक्टर के पास नहीं, फॉर एग्जांपल अगर कहीं आउटब्रेक हुआ है और वहाँ जैसे कोई भी पहला पेशेंट है, अगर वो जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुँचेगा तब तक, या ग्रुप ऑफ पेशेंट्स एक साथ डॉक्टर के पास नहीं पहुँचेंगे तब तक ये दिमाग में किसी के आएगा ही नहीं कि अच्छा इस जगह पे आउटब्रेक हुआ है किसी भी डिज़ीज़ का. और जब आउटब्रेक होता है तब जाके एपिडेमियोलॉजिस्ट के पास रोल शिफ्ट होता है, और वो फिर कम्युनिटी में जाके पता करेगा कि अच्छा ये केस उस जगह से आया था. वहाँ जाके ही विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आउटब्रेक, ऐसा क्या इवेंट हुआ और कौन से लोग इन्वॉल्व हुए, यानी कि पॉपुलेशन एट रिस्क क्या थी, स्प्रेड कैसे हुआ, मोड ऑफ स्प्रेड क्या था, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करेगा. सो एक पेशेंट का डॉक्टर के पास आना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बाकी सब फैक्टर्स. ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच किसे कहते हैं, यानी कि किस तरह से कम्युनिटी में पॉपुलेशन को अप्रोच किया जाता है. सो epidemiological approach to problems of health and disease is based on two major foundations. पहला चीज़ है asking questions, दूसरा चीज़ है making comparisons. Asking questions में दो तरीके के questions पूछे जाते हैं, that is one related to health events and other is related to health action. Okay,
मतलब दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हेल्थ इवेंट से रिलेटेड क्या हो सकते हैं कि इवेंट यानी कि प्रॉब्लम जो है, क्या प्रॉब्लम है, कितना मैग्नीट्यूड है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन अफेक्ट हुआ और क्यों हुआ, ये सारे हेल्थ रिलेटेड जो भी इवेंट है उससे क्वेश्चंस हो गए। देन हेल्थ एक्शन क्या लिया गया उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड इन द फ्यूचर, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय द कम्युनिटी और what action should be taken by the health services, by other sectors, where and for whom these activities should be carried out, यानी कि population at risk है कौन, then what resources are required, इसके लिए चीज़ें क्या चाहिए, raw material क्या चाहिए, resources क्या चाहिए, how are the activities to be organized, और जो भी ये services provide करेंगे वो किस मतलब उनके skills कैसे चाहिए हमें, यानी मैन पावर चाहिए तो क्या क्या उनके skills होने चाहिए, what difficulties may arise ये सब करने में, and how might they be overcome. So इससे क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस के जब हमें आंसर मिलेंगे तो वी विल गेट अ क्लू रिगार्डिंग द डिजीज etiology एंड दस इट विल हेल्प द एपिडेमियोलॉजिस्ट टू गाइड द प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन. सो दिस इज़ द एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि हम बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमें लगता है कि ये हमारी इस पर्टिकुलर टारगेटेड चीज़ से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगी. वो क्वेश्चंस पूछ के हम जो भी डेटा निकल के आता है उसको इंटरप्रेट करते हैं और उससे जो भी इंटरप्रिटेशंस बनती हैं, रिजल्ट्स आते हैं, इंटरप्रिटेशंस मतलब आई मीन जो भी रिजल्ट निकल के आता है उसको इंटरप्रेट करके वी कैन हेल्प इन गाइडिंग द प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज़ और फॉर दैट पर्टिकुलर हेल्थ इवेंट. ओके, सो अब यहाँ पे था सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, मेकिंग कंपैरिजन. कंपैरिजन के बेसिकली कंपैरिजन से हमारा मतलब ये होता है कि हम दो पॉपुलेशंस में कंपेयर करके ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ऐसा क्या डिफरेंस था होस्ट और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन पे तो अफेक्ट पड़ा, दूसरी पॉपुलेशन पे अफेक्ट पड़ा ही नहीं. ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके लिए कुछ मेथड्स यूज़ होते हैं और वो जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं रैंडमाइजेशन, मैचिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन. ओके, ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं. सो आई विल ट्राई टू कवर देम अप इन माई अपकमिंग वीडियोज़. ओके, सो हेयर आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग देम, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. सो ये 3 मेथड्स होते हैं कंपैरिजन करने के. हाउ आई विल ट्राई टू टेल यू इन द अदर वीडियो. ओके, अच्छा, नेक्स्ट कम्स द बेसिक मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी. सो बेसिक मेजरमेंट्स के लिए यानी कि हमने अपना रिसर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमें उसको पता होना चाहिए ना कि जो भी डेटा आया है उससे हम कैसे रिजल्ट्स फाइंड आउट करें, कैसे इंटरप्रिटेशन निकालें जो मीनिंगफुल हो. उसके लिए हमने कुछ मेजरमेंट टूल्स बनाए हुए हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे रेट्स पढ़े थे उस समय, क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट है ना, स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक डेथ रेट, ऑल दीज थिंग्स, सर्वाइवल रेट, दे केम इन द कैटेगरी ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी. मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स थे वो, यानी कि वो हमें बता रहे थे कि ये जो भी डेथ्स हो रही हैं वो जिस भी कैटेगरी, जो भी फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे थे उसमें हमें बर्डन बता रहे थे एक तरह से डेथ्स का. देन कम्स द मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी. ओके, तो किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से कौन इफेक्ट हो रहा है, इसके मेजरमेंट्स आज हम डील करेंगे. ये कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, वी विल बी स्टडिंग ऑन दैट एंड सब्सिक्वेंटली ये बाकी सारी कैटेगरीज वी विल बी स्टडिंग इन द अपकमिंग वीडियोज़. ओके, सो लेट्स फोकस ऑन दिस मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी, बट बिफोर दैट वी शुड नो 3 बेसिक टूल्स of measurement, and we know also one is rate, second is ratio, and third is proportion. What is rate? It is the occurrence of a particular event in a defined population, ठीक है, during a given time period. किसी भी इवेंट का एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पे होना इज कॉल्ड एज रेट. फॉर एग्जाम्पल डेथ रेट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, और ये रेट कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी क्रूड, अगर डेथ रेट पे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा क्रूड डेथ रेट हो सकता है, स्पेसिफिक यानी कि एज स्पेसिफिक डेथ रेट हो सकता है, स्टैंडर्डाइज्ड रेट हो सकता है. जब आपको स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताया जाएगा देन यू विल कम टू नो कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है. तो स्टैंडर्डाइज रेट्स भी होते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज रेशियो. रेशियो है सिंपली आपने 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़ को लेकर डिवाइड कर दिया और आपको उनका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज पता चल गया. ठीक है, जैसे it is the relation in size between 2 random quantities, numerator
हेयर न्यूमरेटर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, बस आपने कोई भी अननोन क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर दिया, जैसे हमने WBCs के नंबर को RBCs के नंबर से डिवाइड कर दिया, तो दे आर नॉट रिलेटेड बट हमने डिवाइड कर दिया। या फिर हम कहें कि अगर एक ग्रुप है जिसको स्केबीज हुआ है, दूसरा ग्रुप हमें कहीं दिख रहा है जिसको फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, बस हमने रैंडमली इनका कोई रिलेशन नहीं है, हमने नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय स्केबीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय ट्यूबरकुलोसिस डिवाइड कर दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज रेशियो। ओके, देन कम्स प्रोपोर्शन। ऑब्वियसली इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टर्म कि एक पूरी चीज़ में से कितना प्रोपोर्शन एक स्पेसिफिक चीज़ को जा रहा है, दैट इज़ प्रोपोर्शन। सो अ रेशियो इंडिकेटिंग रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ पार्ट ऑफ होल, और यहाँ पे पता ही चल रहा है कि जो न्यूमरेटर है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड देयरफॉर इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑल्सो, ठीक है, कि इतना परसेंट 100 में से इस x चीज़ के लिए जा रहा है। ओके, सो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखे आई हैड ट्राइड टू एक्सप्लेन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस विद स्केबीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन दैट पर्टिकुलर विलेज इनटू 100 एट अ सर्टेन टाइम। यहाँ पे टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, किसी भी गिवन टाइम पे कितने बच्चे स्केबीज से अफेक्टेड थे डिवाइडेड बाय उस विलेज में कितने टोटल बच्चे थे, दैट इज प्रोपोर्शन, ठीक है। नाउ कमिंग टू मेजरमेंट्स ऑफ मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी के लिए वी ऑल नो इंसिडेंस होता है, प्रेवलेंस होता है। अब इसी इंसिडेंस के अंदर इंसिडेंस रेट आता है, अटैक रेट आता है, प्रेवलेंस के अंदर पॉइंट प्रेवलेंस आता है, पीरियड प्रेवलेंस आता है। इसको हम 1 by 1 देखेंगे क्या है ये चीज़ें और इसका रिलेशनशिप क्या है, यानी कि इंसिडेंस का प्रेवलेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हम देखेंगे आज के वीडियो में। So, incidence, it is the occurrence of new cases of a disease or injury in a population over a specified period of time, ठीक है, जितने भी न्यू केसेस होंगे किसी भी डिजीज़ के, ठीक है, that is incidence। ओके, then next is incidence rate। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ना एक्चुअल में जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे हम टाइम को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सो पर्सन टाइम रेट, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लोगों को 1 साल के लिए ऑब्जर्व किया, तो आवर पर्सन टाइम रेट क्या हो जाएगा, 10 × 1। यही होता कि अगर हमने 20 लोगों को 2 साल के लिए ऑब्जर्व किया तो दैट विल बी इक्वल टू 20 × 2। सो दिस इज पर्सन टाइम रेट। ये होता है इसलिए किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जब हमारा सैम्पल साइज बहुत बड़ा होता है तो क्या होता है, जैसे कि मतलब अगर हम या तो हम कम लोगों को ज़्यादा साल के लिए फॉलो करें तो हमारी स्टडी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी, या फिर ज़्यादा लोगों को कम टाइम के लिए फॉलो करें तो हमें रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं और हमें बहुत लंबी स्टडी कंडक्ट करनी भी नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 100 लोगों को 1 साल में ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमारा पर्सन टाइम रेट विल बी इक्वल टू 100, या फिर हम एक लोग को 100 ईयर्स के लिए फॉलो करते हैं देन ऑल्सो पर्सन टाइम रेट विल बी 100। सो इसमें हमें देखना होता है कि हमारी स्टडी कितने कम टाइम में पूरी हो रही है, अकॉर्डिंगली वी टेक दैट। ओके, सो दिस इज पर्सन टाइम रेट। So it is generally calculated from a long-term cohort follow-up study wherein enrollees are followed over time and the occurrence of new case of disease is documented, ठीक है। तो typically each person is observed from an established starting time until one of the 4 endpoints। तो अगर हम long term लें कि हमें बहुत लंबी स्टडी कंडक्ट होती हुई आ रही है तो हम क्या करेंगे कि जैसे एक पर्सन है उसको हम मतलब स्टार्टिंग से लेके ये 4 में से किसी एक पॉइंट तक ऑब्जर्व करते हैं। वो 4 एंड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, या तो डिजीज़ शुरू हो गई है, या उस पर्सन की डेथ हो गई है, या वो माइग्रेट कर गया है आउट ऑफ द स्टडी यानी कि लॉस टू फॉलोअप हो गया है, या फिर स्टडी ही ख़त्म हो गई है। इन 4 पॉइंट्स में से जो भी पहले आ जाएगा वो ड्यूरेशन उस पर्सन के लिए ऑब्जर्वेशन पीरियड बन जाएगा एंड उस पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे उस पर्सन को तो वी विल गेट पर्सन टाइम रेट। Okay, so to calculate incidence rate, it is number of new cases of disease divided by person time at risk. That is time each person was observed and totaled for all person. For example, यहाँ पे 10 लोग थे और 10 लोगों का अलग अलग टाइम के लिए ऑब्जर्व किए गए वो, तो हम फर्स्ट पर्सन इंटू हाउ मच टाइम प्लस सेकेंड पर्सन इंटू हाउ मच टाइम, सबके लिए 1 आएगा नंबर ऑफ पर्सन के लिए, लेकिन टाइम डिफरेंट होगा और ये सबको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा पर्सन टाइम एट रिस्क। ओके,
Then again, one of the special kind of incidence rate is attack rate. Attack rate is nothing but number of new cases of a specified disease during a specified time interval divided by total population at risk during the same time interval into 100. Okay. And what is secondary attack rate? It is defined as जो भी number of exposed person है developing the disease within the range of incubation period. जो उन्होंने प्राइमरी केस से जो उनको एक्सपोजर हुआ, तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर जितने एक्सपोज पर्सनस को डिजीज़ हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज्ड और ससेप्टेबल पर्सनस इनटू 100. ओके. यहाँ पे क्या चीज़ नोट करने वाली है कि एक तो डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स जो भी एक्सपोज हुए थे, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर हो चाहे न्यूमरेटर, वहाँ से प्राइमरी केस को हटा दिया जाता है, बिकॉज प्राइमरी केस तो हो चुका ना, उसकी वजह से ये सारे केसेस हो रहे हैं, तो ऊपर से भी हटा दिया जाएगा, नीचे से भी, ठीक है. और ये कब यूज़ किया जाता है? ये तब किया जाता है जब प्राइमरी केस का जो इन्फेक्शन पीरियड होता है या फिर दैट केस इज़ इन्फेक्टिव फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तब हम सेकेंडरी अटैक रेट निकालते हैं, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए रहा, उतने देर में उसने काफ़ी सारे लोगों को स्प्रेड कर दिया, तो हमें सेकेंडरी अटैक रेट लगाना होता है. नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेवलेंस. व्हाट इज़ प्रेवलेंस? इट इज़ द इट इज़ ऑल द करंट केसेस, यानी कि चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो, टोटल नंबर ऑफ केसेस एग्जिस्टिंग एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ पॉपुलेशन. सो इट इज़ द proportion of people who have disease among those who do not have. Okay, and it is of two types, point and period prevalence. Now what is point prevalence? Number of all current cases of a specified disease existing at a given point in time. ठीक है, अगर वो given point in time होंगे तो वो point prevalence होगा. अगर वो given period of time interval, एक time interval में होंगे, then it will be period prevalence. और ये 10 into 1 कुछ नहीं है, कई बार हम इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इसको 100, तो जितना नंबर ऑफ ज़ीरोस बढ़ते जाते हैं उतना ही ये n की वैल्यू हो जाती है. यानी कि अगर n 1 है तो दैट विल बी 10, n 2 हो गया तो 100 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. ये हम अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, बट द वैल्यू ऑफ 10 into n माइट बी 1000, 1 लाख, है ना, और 10 लाख फॉर रेयर एट्रीब्यूट्स एंड फॉर मोस्ट डिजीजेस. अब यहाँ पे मैंने कुछ जो हमने यहाँ पे आज इंसिडेंस रेट एंड ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसको मैंने एक साथ एक टेबुलर फॉर्म में देने की कोशिश की है. सो यू कैन ऑल्सो रिवाइज इट फ्रॉम हेयर. ओके. देन कम्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस. सो हमने कहा इंसिडेंस न्यू केसेस होते हैं, तो ये जो टैप से न्यू ड्रॉप्स गिर रहे हैं, दिस इज़ न्यू केसेस. और प्रेवलेंस मतलब टोटल, चाहे वो न्यू हो चाहे वो ओल्ड हो, तो टोटल ये जो पानी भरा हुआ है दैट इज़ द प्रेवलेंस. और प्रेवलेंस में क्या क्या चीज़ें निकल जाती हैं? या तो जो लोग क्योर हो गए या फिर जिन लोगों की डेथ हो गई, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रेवलेंस. ओके. Now the relationship between the two. So the relationship is prevalence is equal to incidence into mean duration, है ना. और प्रेवलेंस कैसे इंक्रीज़ होगा? या तो इंसिडेंस बढ़ जाए या फिर मीन ड्यूरेशन बढ़ जाए. ओके. इंसिडेंस बढ़ जाएगा यानी कि न्यू केसेस का नंबर बढ़ता जा रहा है, और मीन ड्यूरेशन कैसे बढ़ता है? या तो डिजीज़ ही लंबे ड्यूरेशन की है या फिर प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ विदाउट क्योर, यानी कि डिजीज़ ठीक ही नहीं हो रही है और चलती जा रही है, तो मीन ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है. सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेवलेंस. P इज इक्वल्स टू ID या PID करके भी आप याद कर सकते हैं. ओके. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी. सो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट once again to subscribe my video. This will really help my channel to grow. And yes, thanks for watching. Bye.